So this is the third and last class for the bioenergetics. But I don't think that today it will be over because it's a long topic. So today I will discuss about that last part of the aerobic metabolism. Then what are the different energy systems, measured energy systems involved in different types of sports and games. After that, one more topic, the subtopic is there, that is lactic acid and its relevance in sports. So if it is not finished, so next class also I will continue it, but I will try to finish it because it's a big topic, the bioenergetics. ये खत्म ही नहीं होता है bioenergetics. It is the most important topic that it plays the pivotal role in exercise physiology. So bioenergetics, say yesterday I was going through an article. In that article itself is why the coaches should know the bioenergetics, why the coaches should know the energy systems. इसके बारे में एक पेपर लिखा गया है ये. आपने वो सान फिल्म का एक डायलॉग सुना था? अजीब जानवर है ये, कितना भी खाते रहे लेकिन भूखा रह जाता है. तो मैं भी बोलता हूँ कि अजीब टॉपिक है ये बायोएनर्जेटिक्स एंड एनर्जी सिस्टम. कितना भी पढ़ो फिर भी भूखा रह जाता है ये, खत्म ही नहीं होता है ये टॉपिक. सो आई विल ट्राई टू फिनिश टुडे. So last class I have finished here that aerobic system, that aerobic glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, and fat metabolism. So these are the things involved in aerobic system. So in the aerobic system already the glycolysis I have started. The only difference is that it is aerobic glycolysis only. That aerobic glycolysis means the conversion of glucose or glycogen to pyruvic acid. यहाँ पे lactic acid नहीं बनता है in aerobic glycolysis. Why? Because lactic acid क्यों बना था? Because of the dearth of the oxygen. Oxygen का कमी के कारण ये lactic acid pyruvic acid lactic acid में convert हो गया था. क्यों convert हुआ था lactic acid में? क्योंकि जो एक स्टेप में हाइड्रोजन आयन निकला था, तो हाइड्रोजन आयन को NAD लिया था, NADH लेके उस हाइड्रोजन आयन को पाइरुविक एसिड को दे दिया था, इसलिए पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था. अगर इन एरोबिक कंडीशन, so there is sufficient amount of oxygen is there, so with the help of the oxygen, that NADH, it will enter into the electron transport chain, and ultimately that hydrogen ion will be taken by the oxygen. That is why it is aerobic system. It occurs, the metabolism takes place in presence of oxygen. So that oxygen takes the hydrogen ion and it is converted into water. Water में convert हो जाता है ये oxygen और hydrogen. लेकिन anaerobic system में oxygen नहीं था, इसलिए वो hydrogen ion ultimately NADH होके pyruvic acid में आके lactic acid बन रहा था. लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से pyruvic acid तक बनता है. ये pyruvic acid further it will be oxidized via Krebs cycle, it will be converted into acetyl-CoA. Then via Krebs cycle, it will produce the more number of ATP inside the mitochondria. That is very, very important. And this NADH and FADH also it is produced, which enter into the electron transport chain. So electron transport chain, ये क्या है? ये oxidative phosphorylation होता है. Oxidative phosphorylation क्यों है? मैं बाद में आता हूँ मैं. इसमें क्या है? In the presence of oxygen, that ADP is phosphorylated. इसका मतलब क्या है? ADP का अंदर एक phosphate चला जाता है, इसीलिए उसको बोलता है phosphorylation, and that take place in presence of oxygen. That's why it is called oxidative phosphorylation. So electrons are transferred from NADH to FADH, FADH to another. So many carriers are there. So electrons are passed through a series of carriers, and ultimately, while passing the hydrogen ion, the electron also will be passed, and while passing the electron, जब electron pass होता है, तब energy निकलता है. So that energy, it will be trapped by ADP and PI. It will be trapped there, and ATP will be produced. And at last, this hydrogen ion,
वो NADH और FADH जो हाइड्रोजन आयन को लेके जाता है वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीजन के साथ ये पानी बना देता है। इसके बाद एरोबिक मेटाबॉलिज्म में और एक चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज फैट मेटाबॉलिज्म। फैट क्या है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल पहले क्या है? ट्राइग्लिसराइड। फैट मतलब ट्राइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होता है तो इसीलिए ट्राइग्लिसराइड बोलता है। तो ट्राइग्लिसराइड जब टूटता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लिसरॉल क्या करता है? वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन के ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाता है और एसिटाइल को जो है वो TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंट्री हो जाता है उसका। So here you can see this is the Krebs cycle। अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, देन फैट। थ्रू ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज या ग्लाइकोजन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इधर ट्राइग्लिसराइड जो है उसको लाइपोलाइसिस, लाइपो मींस लिपिड, फैट को और एक नाम से जाना जाता है जिसे लिपिड बोलता है। तो लिपिड का जो ब्रेकडाउन, मैंने पहले ही बोला था लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, जैसे ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, सो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। सो लाइपोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड और ब्रेकडाउन ऑफ फैट, तो उससे फैटी एसिड बन जाता है। फिर फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बन जाता है। इधर प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, so many amino acid together it forms the protein। बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा होके एक प्रोटीन बनाता है। फिर प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड निकलता है। तो अमीनो एसिड क्या होता है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर आ जाता है अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। और कुछ अमीनो एसिड जो है ये आपका जो इंटरमीडिएट है ये इसमें कन्वर्ट होता है। कुछ अमीनो एसिड जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कुछ अमीनो एसिड जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक अमीनो एसिड का नाम सुना होगा, ग्लूटामिक एसिड, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो उसमें क्या होता है? अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होके ये क्रेब्स साइकिल के द्वारा ये ऑक्सीडेशन होता है इसका। अल्टीमेटली हमारा मेन मकसद जो है एटीपी प्रोडक्शन है। जितने ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा उतना हमारा फायदा है कि एनर्जी, एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर ये पायरुविक एसिड क्या होता है? देखिए फर्स्ट जो पायरुविक एसिड है ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोए क्या होता है? ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोए दोनों मिलकर साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड फिर आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद सक्सिनिल कोए में कन्वर्ट होता है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऐसी ये जो साइकिल है, ये साइक्लिकल ऑर्डर में ये मेटाबॉलिज्म होते रहता है। ये फिर पायरुविक एसिड, एक और पायरुविक एसिड आया, एक और एसिटाइल कोए, एक और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ ऐसे घूमते रहता है ये। This is the cyclical order that metabolism take place. So that's why it is called Krebs cycle। और दूसरा नाम है इसका TCA cycle और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और एक नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। तो सारे के सारे सेम नेम है, Krebs cycle, TCA cycle, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता है? बीच बीच में आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन है। इन दिस स्टेप 1 इलेक्ट्रॉन, इन दिस स्टेप 1 इलेक्ट्रॉन, दिस स्टेप 1 इलेक्ट्रॉन, जितने सारे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, मतलब ये सारे स्टेप्स जो है इसमें हाइड्रोजन आयन निकलता है। जब भी हाइड्रोजन आयन निकलेगा, दैट हाइड्रोजन आयन इट विल बी टेकन बाय आइदर NAD और बाय FAD। ये NAD FAD मैंने पिछले क्लास में बोला था, इट्स ऑल कोएंजाइम जो विटामिन से बनता है। NAD एंड FAD, NAD nicotinamide adenine dinucleotide, the nicotinic acid on vitamin is there, and that riboflavin on vitamin is there, B1. So from that FAD is produced. So that NAD and FAD, those coenzymes, they take the hydrogen ion। ये जहां जहां ये दिखा रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन कौन लेगा? NAD लेगा। Here also NAD will take this hydrogen ion. Here also NAD will take this hydrogen ion. But here this exception is there. Instead of NAD, that FAD will take this hydrogen ion. Here also NAD will take this hydrogen ion. ये लेके क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुसेगा ये NAD और FAD जो भी है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक का बाद एक को हाइड्रोजन आयन को एक दूसरे का कंधा पे छोड़ेगा और उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी निकलता है वो एनर्जी क्या करता है? ADP और PI को बाइंड करके ATP बनाता है।
और ये सारे के सारे जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर होता है। ये सारे के सारे जो Krebs साइकिल है, इट टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई मोर नंबर ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू Krebs साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। That's why more number of high energy compound ATPs are produced inside the mitochondria. That's why mitochondria is called powerhouse of the cell. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहता है। ये देखो, ये पाइरुविक एसिड एसिटाइल में कोए में कन्वर्ट हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हियर हाइड्रोजन आयन इज रिलीज्ड, NAD लिया, NADH बन गया है। देन ये सब एंजाइम है, साइट्रेट सिंथेटेस, एकोनाइटेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये सब एंजाइम है। ये सारे के सारे एंजाइम बहुत जरूरी है ये स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि ये एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दोनों मिलकर साइट्रिक एसिड बनाता है, लेकिन वो बनने के लिए ये साइट्रेट सिंथेटेस एंजाइम चाहिए। फिर साइट्रिक एसिड जब आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके लिए एकोनाइटेज एंजाइम चाहिए। फिर आइसोसाइट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। इस स्टेप, इन दिस स्टेप, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, वन हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड इन दिस स्टेप एंड द NAD is taking this hydrogen ion. Then again alpha ketoglutarate acid is converted into succinyl CoA. So with the help of the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase, here also an hydrogen ion is released. That hydrogen ion is taken by the NAD. Again this succinyl CoA is converted into succinic acid. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ATP नहीं मिल रहा है। फर्स्ट क्या होगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकलेगा सक्सिनिल कोए से, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये GDP, दिस इज आल्सो दैट अनदर वन नाइट्रोजनस बेस दैट इज कॉल्ड गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ये GDP PI को लेके GDP बनता है। फिर GDP क्या करता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट ADP को देता है, अल्टीमेटली ये ATP बन जाता है। तो इस दिन दिस स्टेप वन ATP is produced. Then from succinic acid to fumaric acid, here that hydrogen ion is released. So here this hydrogen ion is taken by not by NAD, it is taken by the FAD, another coenzyme, and FAD is converted into FADH. Then fumaric acid is converted to malic acid with the help of the enzyme fumarase. Then malic acid to oxaloic acetic acid, malic dehydrogenase enzyme का सहायता से और एक हाइड्रोजन आयन निकलता है। That hydrogen ion again is taken by the NAD and it is converted to NADH. ये NADH जितने सारे this NADH, this NADH, this NADH, this NADH and this FADH, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अंदर जाता है to produce the ATP. आप पूछोगे सर इतने सारे एंजाइम, ये सारे एंजाइम को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्यों? ये साइट्रेट सिंथेटेस एंजाइम है, फिर ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, ये सब इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये एंजाइम जो है ना, ये क्या है, ये आपको ट्रेनिंग में जब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ना, फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से जैसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रहा है, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग से आपको एंड्योरेंस बढ़ेगा। एंड्योरेंस ट्रेनिंग से एंड्योरेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एरोबिक ATP प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो Krebs साइकिल ये दैट विल बी फैसिलिटेटेड, वो बढ़ जाता है। Krebs साइकिल का जो है वो बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये साइट्रेट सिंथेटेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रेनिंग से ये सब एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाता है। फिर ट्रेनिंग से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ Krebs साइकिल भी बढ़ेगा, ये Krebs साइकिल भी ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ एरोबिक ATP प्रोडक्शन आल्सो विल बी इंक्रीज। ये सब इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग पढ़ने के लिए ये सब एंजाइम आएगा। तो उस टाइम ये नहीं बोलना कि ये एंजाइम पहली बार सुन रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा एंजाइम के साथ परिचित कर रहा हूँ आप लोगों को। ये एंजाइम थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम। उस टाइम मैं फिर याद दिलाऊंगा आपको कि ये एंजाइम कहाँ से आता है, ये कहाँ पर आपने पढ़ा है, मैं फिर याद दिलाऊंगा। और ट्रेनिंग का टाइम ये काम आएगा, जब फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग पढ़ोगे उस टाइम ये काम में आएगा ये। तो यहाँ तक ये दिस इज द Krebs cycle, it occurs in the cyclical order and this is the electron transport chain. मैंने आपको जो बताया था ना ये कैसे होता है, देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि एनर्जी सबस्ट्रेट क्या है, मतलब जो कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट, जो सबस्ट्रेट मतलब फूड कंपोनेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमें आपको पता है कि आहार का 6 घटक है। देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर. Out of these 6, the 3 substrate
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दे गिव्स द एनर्जी। ये विटामिन, मिनरल, वाटर ये एनर्जी नहीं देता है, लेकिन हाँ ये एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है ये, और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए काम होता है ये विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये सब। लेकिन ये जो डायरेक्ट एनर्जी देता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो कोई भी एनर्जी सबस्ट्रेट जो है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन, ये सबस्ट्रेट का मतलब क्या है मालूम है? ये जो देखो कोई भी हाइड्रोजन आयन जिसका साथ अटैच होता है, जैसे ये देखो ये पाइरुवेट में एक हाइड्रोजन आयन, तो मान लो ये पाइरुवेट को एस नाम से जाना जाता है सबस्ट्रेट। पाइरुवेट का जो हाइड्रोजन आयन है वो एनएडी को दे दिया है, फिर वो एनएडीएच बन जाता है, ठीक है। ये जो है ये आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड, इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन एनएडी को दे देता है, यही इधर लिखा है इसलिए एस, दैट इज। सो सपोज ये पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड का हाइड्रोजन जो है ये एनएडी का ऊपर आ गया है, तो एनएडी ने क्या किया, NADH बन गया है। तो NADH क्या किया, फिर ये NADH ये हाइड्रोजन आयन को FAD का ऊपर छोड़ देता है, ये देखो FADH लेके FADH बन गया है, फिर FADH क्या किया, इसको छोड़ के कोएंजाइम Q, दिस इज अनदर कैरियर, इसको छोड़ देता है इसका ऊपर। फिर ये देखो ये जहां पे हाइड्रोजन आयन, who takes the hydrogen ion, that means that will be reduced, और हाइड्रोजन आयन जब एक्सेप्ट करेगा वो रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन आयन जब छोड़ेगा उसको बोलेगा ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन लेंगे वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन आयन छोड़ देंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया। ये देखो ये कोएंजाइम Q जब ये FAD से हाइड्रोजन आयन ले लिया वो रिड्यूस्ड हो गया है, फिर ये कोएंजाइम Q जब ये हाइड्रोजन आयन आयरन को ऊपर छोड़ दिया, Fe का मतलब आयरन, दैट दिस साइटोक्रोम B, दिस इज अनदर कैरियर, इसका ऊपर जब छोड़ दिया है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया। फिर ये जब छोड़ा तो ये जब हाइड्रोजन आयन जहां जहां देखो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है ना, वहां पे देखो दो दो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट इज कॉल्ड। सो चेन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मैंने बोला था एनर्जी विल बी रिलीज, and that energy will be taken by ATP and PI। ATP and PI हमारा इधर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में घूम रहा है, लेकिन ATP और PI ATP क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि एनर्जी चाहिए। आपको फर्स्ट ATP-CP सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ATP और PI को ATP में कन्वर्ट करने के लिए ATP और PI से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब हाइड्रोजन आयन एक दूसरे का ऊपर जाता है, ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तब ये हाइड्रोजन एनर्जी निकलती है। तो दैट एनर्जी बी ट्रैप्ड बाय ADP एंड PI टू फॉर्म द ATP। तो ये देखो 3 स्टेप में ये ATP निकल रहा है यहाँ पे थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और साथ में फायदा क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन आयन ये ट्रांसफर होते 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 देखो ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बन रहा है। तो हाइड्रोजन आयन को जो काल्पिट बोलता था ना, उसको जो बैड इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर देता है, ये वाटर बना के न्यूट्रल कर देता है हाइड्रोजन आयन। नहीं तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देगा, आपको मेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है उसको हैम्पर करेगा ये। तो इसलिए दिस हाइड्रोजन आयन अल्टीमेटली इट विल बी टेकन बाय द ऑक्सीजन टू फॉर्म द H2O। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ऑक्सीजन होना जरूरी है। So that's why we are discussing about the aerobic metabolism। और फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था शुरू में कि एरोबिक सिस्टम जो है that take place in presence of oxygen। अब क्या है, जब ये एक NAD टोटली ये जब ऑक्सीडाइज होता है, ये NAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा अल्टीमेटली इस हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है, तो इसमें क्या है, इसमें 2.5 ATP प्रोड्यूस होता है। पहले क्या बोला था, अगर पुराना किताब देखोगे ओल्ड एडिशन का किताब में देखो ATP बोलता था, रिसर्च करके देखा गया एक्चुअली इंस्टेड ऑफ 3 2.5 ATP प्रोडक्शन होता है जब एक NAD ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाता है। और FAD जब होता है, ये इंस्टेड ऑफ FAD से अगर स्टार्ट होगा तो एक ATP कम होगा, तो FAD से जब स्टार्ट होगा तो ये 2 दिखा रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 नाउ इट इज कॉल्ड 1.5 ATP। तो एक NAD से 2.5 ATP मिलता है और एक FADH से 1.5 ATP मिलता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी जब ATP का हिसाब किताब करेंगे ना तब ये काम में आएगा।
ये देखो, now how many ATPs are produced when one molecule of glucose is fully oxidized through glycolysis and Krebs cycle? मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल द्वारा पूरा मात्रा में अगर ऑक्सीडाइज होगा, मेटाबोलाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिकली, तो कितने मात्रा में संख्या में एटीपी प्रोडक्शन होता है? जरा ध्यान से देखना, घबराना नहीं, मैं एक एक करके मैं समझाता हूं। देखो, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, फर्स्ट हमने बताया था ग्लाइकोलाइसिस में आपका 4 एटीपी प्रोडक्शन होता है इन एनारोबिक कंडीशन। इन ग्लाइकोलाइसिस 4 एटीपी प्रोडक्शन होता है। एरोबिक कंडीशन आल्सो दिस 4 एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन 4 एटीपी का जाएगा यहाँ पे 2 एटीपी क्यों लिखा है? इसलिए ये देखो इधर लिखा है नेट गेन ऑफ एटीपी। नेट गेन का मतलब क्या है? मैंने उस दिन बताया था, आपको एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपने 2 रुपया इन्वेस्ट किया है और आपको 4 रुपया मिला है आखिर में, तो प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 4 रुपीज माइनस 2 रुपीज, क्योंकि 2 रुपीज इन्वेस्ट किया था, उसको साइड में रखो, तो अल्टीमेटली 2 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट गेन है 2 रुपया। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें एक एटीपी देना पड़ा था, तो इसलिए 1 एटीपी वाज इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट स्टेप। सेकंड एटीपी वाज इन्वेस्टेड इन द स्टेप्स दैट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसीलिए आप जब पढ़ोगे ना, साइड में आपको लिख के रख लेना चाहिए था ये कि ग्लाइकोलाइसिस में ये स्टेप है, लास्ट क्लास में जब बताया था ये। Now from the glycolysis net ATP is 2. Then in the glycolysis आपको NADH, 2 NADH मिलता है। एक है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। In that step 1 NADH is produced. Another one, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, उससे 2 पाइरुवेट मिला था, तो 2 पाइरुवेट, इसलिए जब 2 बार होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट 2 मिला था, इसलिए 2 NADH मिलेगा आपको, वो 2 बार होगा ये। फिर वापस जाता हूं, फिर आपको याद आएगा। ये देखो 2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज जो था 6 कार्बन कंपाउंड, उससे 2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मिला था, ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ से एक NADH, ये जब एक बार ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से 1,3 डाइफॉस्फेट बन रहा है तो एक NADH, ये 1,3 डाइफॉस्फेट एल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फेट एसिड जब बन रहा है एक NADH, तो 2 NADH है, ठीक है। तो इसलिए वो 2 NADH उधर लिखा हुआ है। तो 2 NADH, तो एक NADH हमने बोला था कि 2.5 ATP देता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाता है ये, तो 2 NADH से कितना है? 5, तो 5 + 2 7। देन पाइरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएन, अनदर 2 NADH, सो अनदर 2 NADH मतलब एक है देता है 2.5, सो 2.5 × 2 अनदर 5, तो 7 + 5 12। देन और एक स्टेप बताया था जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जो सक्सिनिल कोए से जो सक्सिनिक एसिड जो स्टेप है, ये देखो वहां पे 2 GTP है, वो 2 ATP देता है 2 GTP से। ये देखो ये सक्सिनिल कोए से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा है तो 1 GTP मिल रहा है, और एक पाइरुविक एसिड जब आएगा 1 more GTP, इसलिए 2 GTP दिखा रहा है, तो 2 GTP से 2 ATP मिलेगा, 1 GTP से 1 ATP, अनदर GTP से अनदर 1 ATP, तो 2 GTP से 2 ATP, सो 12 + 2 14, 12 + 2 14। नाउ 6 NADH, 6 NADH कैसे? 1 2 3, ये एक पाइरुविक एसिड से, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ये पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनेगा, तो एक पाइरुविक एसिड से 1 2 3, another pyruvic acid say another 1 2 3, so 3 + 3 6 NADH, so 6 NADH,
एक NADH 2.5, तो 6 NADH 15 ATP देता है, तो 15 + 14 29, एंड 2 FADH। 2 FADH कहाँ, ये देखो, 1 पाइरुविक एसिड से 1 FADH, अनदर पाइरुविक एसिड से अनदर FADH, तो 2 FADH, और एक FADH कितना ATP देता है, 1.5 ATP देता है। सो 2 FADH कितना ATP देंगे, 2 FADH कितना देंगे, 1.5 into 2 means 3, इसीलिए लिखा है 2.5 ATP per NADH, 1.5 ATP per NADH इधर लिखा हुआ है। तो ये टोटल देखो 29 plus 3 32 ATP, it is the net gain. So one molecule of glucose aerobically, if it is fully oxidized through glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain, so total net gain will be 32 ATP. ये पुराना किताब में अगर देखोगे तो उस टाइम कॉन्सेप्ट था, instead of 2.5 it is 3 ATP, instead of 1.5 it was 2 ATP from FADH, from NADH it was 3 ATP. तब क्या होता था, तब 38 मॉलिक्यूल ATP लिखा था उसमें, तो नेट गेन है 38 मॉलिक्यूल्स ATP. सो यह है ATP का हिसाब किताब. हमारा अल्टीमेट काम है, मेन मकसद है, एरोबिकली हमें ज्यादा से ज्यादा ATP चाहिए, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है लॉन्ग ड्यूरेशन लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी का लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी, उसमें हमें समय का कोई पाबंदी नहीं है और हमें ATP बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ऑक्सीजन को सप्लाई बराबर होना चाहिए. आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीडेशन के लिए. हमने देखा होगा कि NADH जब जा रहा है अल्टीमेटली हाइड्रोजन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है. तो बगैर ऑक्सीजन आपको ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई द एरोबिक, फर्स्ट पहले वाला स्लाइड में मैंने बताया था कि दैट एरोबिक सिस्टम इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट एरोबिक मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरोबिक. नाउ नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैराथन रनिंग कर रहा है, 10,000 मीटर रनिंग कर रहा है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ये कार्बोहाइड्रेट इज नॉट सफिशिएंट. मेनली देखो ड्यूरिंग एक्टिविटी द प्राइमरी सोर्स दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, शुरू में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, लेकिन जब कंटिन्यूअस एक्टिविटी चल रहा है, एक टाइम आएगा जब कार्बोहाइड्रेट कम होते जाएगा, तब ये आएगा फैट मेटाबॉलिज्म. आपको फैट एनर्जी देना शुरू करेंगे. तो इसलिए फैट कैसे एनर्जी देंगे, फैट आई टोल्ड ट्राइग्लिसराइड फर्स्ट इट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो फैट मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, दिस ग्लिसरॉल इट विल एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस. कैसे ग्लाइकोलाइसिस में अंदर जाएगा, इसके लिए फिर दोबारा वापस जाना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस में. ये देखो ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, ये जो फैट है, फैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. सो दैट ग्लिसरॉल विल बी फॉस्फोडिलेटेड, उसमें फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट बन जाएगा. फिर वो ये रास्ता पकड़ लेगा ये ग्लाइकोलाइसिस का. ठीक है, तो ग्लिसरॉल ऐसे करके ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके ग्लाइकोलाइसिस पकड़ के फिर ATP प्रोडक्शन करने लगेगा. ये फिर ये पाइरुविक एसिड जाएगा, पाइरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोए से फिर ये क्रेब्स साइकिल द्वारा ये मेटाबॉलिज्म होते रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होते रहेगा. और फैटी एसिड क्या करेगा, ये फैटी एसिड जो है, दैट फैटी एसिड it will be activated to fatty acyl CoA. Ultimately this fatty acid it will be converted into acetyl CoA, and this is a very important thing, you should keep it in your mind. आपको याद रखना पड़ेगा, जो फैटी एसिड जब ऑक्सीडेशन होता है उसको एक स्पेशल नाम है, उसको बोलता है बीटा ऑक्सीडेशन. जो बीटा पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ, बीटा पोजीशन अल्फा पोजीशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ फैटी एसिड का, उसको बोलता है थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये एसिटाइल कोए बन जाता है. तो जब भी एसिटाइल कोए बन जाता है, ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल के अंदर घुस जाता है. फिर क्रेब्स साइकिल नॉर्मल जैसे ATP प्रोडक्शन होता है, NADH और ये ATP ये सब फलाना वो ऐसे ही क्रेब्स साइकिल द्वारा ये ATP प्रोडक्शन करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा ये NADH बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है. अल्टीमेटली ये ATP प्रोडक्शन होता है. इसलिए ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉलेट 3 फॉस्फेट एंड एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस.
Then fatty acid is converted into acetyl CoA by the process of beta oxidation. Beta oxidation द्वारा ये fatty acid जो है ये acetyl CoA में परिवर्तित होता है. उसके बाद beta oxidation occurs inside the, ये सब जो होता है ना ये beta oxidation inside the, again it takes place inside the mitochondria. ये mitochondria के अंदर होता है. Then acetyl CoA entered into the Krebs cycle, ultimately production of ATP. ATP production होता है. अभी थोड़ा फैटी एसिड के बारे में थोड़ा आपको मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगा. ये सब एरोबिक मेटाबॉलिज्म में हो रहा है. ये देखो ये फैटी एसिड जो है ना बहुत सारे ये जैसे 4 कार्बन फैटी एसिड जो है दैट इज ब्यूटिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड बोलते हैं उसको. ऐसे ही ये 16 कार्बन मोस्ट कॉमनली अबंडेंट दिस फैटी एसिड जो है ना दैट इज कॉल्ड पामिटिक एसिड, नॉट पाल्मिटिक. ये एल साइलेंट पामिटिक एसिड बोलता है. तो पामिटिक एसिड ये एक 16 कार्बन एसिड है. ठीक है. ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड. मैं बताता हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. आपने सुना होगा फैट सैचुरेटेड फैट बोलता है. ये सैचुरेटेड फैट मत खाना, अनसैचुरेटेड फैट खाना है. ये जब आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में उसमें आपको और भी ये विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा आपके साथ ये न्यूट्रिशन का चैप्टर में ये फैट का बारे में, फैटी एसिड का बारे में. तो ये जान लो जो सैचुरेटेड फैट है सिंपल है. जो फैट इन रूम टेम्परेचर इट इज सॉलिड दैट इज सैचुरेटेड. जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है दैट इज अनसैचुरेटेड. तो क्या है ये जैसे कि ये बटर घी ये सब सैचुरेटेड फैट में आता है. अनसैचुरेटेड है जो ऑयल है, ये जो ऑलिव ऑयल है, ये सब अनसैचुरेटेड है. ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का डिफरेंस क्या है मालूम है? ये जो फैटी एसिड है ना ये देखो 16 कार्बन फैटी एसिड है. ये काला काला जो है ना ये ब्लैक, ऑल ब्लैक्स एट द कार्बन. ठीक है. लास्ट में है COOH, COOH ये एक C, देन CH2 ये सब H है. एक एक H. ये कार्बन का 4 वैलेंस है. 1 2 3 4 4 वैलेंस सेटिस्फाई करना है. तो ये सब कार्बन है, ये हाइड्रोजन है. तो कितना कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये 16 कार्बन जो फैटी एसिड है इसे बोलता है पामिटिक एसिड. ये पामिटिक एसिड का ऐसे स्ट्रक्चर बोलता है, इसको बोलता है बॉल एंड स्टिक मॉडल. इसको बोलता है बॉल एंड स्टिक मॉडल ये फैटी एसिड का. ऐसे ही ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड. और ये जो है ओलिक एसिड ये 18 कार्बन फैटी एसिड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. तो यहाँ पे जो है देखो ये सारे के सारे ना सिंगल बॉन्ड है. यहाँ पे क्या है ये एक 9th पोजीशन में जो 9th कार्बन है ना तो 9th कार्बन में एक डबल बॉन्ड है. तो इसलिए देखो इधर CH यहाँ पे CH2 नहीं है क्योंकि C का 4 वैलेंस से सेटिस्फाई करना है ना. तो 4 वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए इधर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर एक हाइड्रोजन होना चाहिए. इस तरह पे कार्बन, इस तरह पे कार्बन, लेकिन एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है. तो इसलिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड है ये. तो डबल बॉन्ड जो है ये इसको बोलता है, जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको बोलता है अनसैचुरेटेड. जहां पे सिंगल बॉन्ड है ये भी देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है. और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 पोजीशन में देखो डबल बॉन्ड है. ये डबल बॉन्ड जो है ये, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड. ये इतना तक याद रखो अनसैचुरेटेड. क्योंकि अनसैचुरेटेड जो है ना ये डबल बॉन्ड जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब टूटता है, इट इज इजीली ब्रेकेबल. एंड सिंगल बॉन्ड जो है इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल. तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैट जो है दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल. उसको आसानी से पच सकता है, ये आसानी से उनको पाचन हो सकता है. लेकिन ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको इतना आसानी से उसका पाचन नहीं होता है. सो सैचुरेटेड इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल बट अनसैचुरेटेड फैट जो है दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल. तो फैटी एसिड कार्बन जो एटम है दैट इज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है. दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप COOH. ये CO जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप बोलता है. तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6. सो आपने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड. सो ओमेगा 3 फैटी मान लो 3 नंबर पोजीशन में एक डबल बॉन्ड है ये, तो इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलता है. देन आइकोसापेंटानोइक एसिड ये सब सुना है. कोई फिश में रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसलिए वो फिश बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो ये डिफरेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट और फैट में. कार्बोहाइड्रेट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से आप जब फुल्ली ऑक्सीडाइज हो रहा है एरोबिकली तब कितने एटीपी मिल रहा है आपको? 32 नेट गेन आपको मिल रहा था एटीपी. लेकिन जब 1 पामिटिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पामिटिक एसिड जब फुल्ली 16 कार्बन ये एसिड जो पामिटिक एसिड ये फैटी एसिड
जब फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है तब देखो 129 एटीपी, मतलब नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन आर मच मोर फ्रॉम द फैट मेटाबॉलिज्म कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लेकिन इसका एक ही कंडीशन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए फैट मेटाबॉलिज्म के लिए उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो मतलब जब इंटेंसिटी बहुत ही कम होगा, ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा होगा, तब ये आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट। इसीलिए जो अपने लोगों का एक गलत प्रेमिया है कि मैं जितना ज्यादा से भागूंगा, जोर से भागूंगा तो मेरा उतना ज्यादा फैट बर्न होगा। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं है। आप जितना लो इंटेंसिटी में एक्टिविटी करोगे आपको उतना ज्यादा फैट बर्न होगा। तो इसलिए फैट बर्निंग जो है that is through low intensity activity only the fat will be burned, because in low intensity activity only you can get the maximum amount of oxygen. So if you get the maximum amount of oxygen, your maximum fatty acid, the fatty acid oxidation will be there, fat oxidation will be there, then only the fat burning will be there. So इसलिए compared to high intensity that speed running, that slow continuous running or the brisk walking, where you will get the more oxygen. So that only helps to burn your fat. Now इसका साथ थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, प्राइमरी फ्यूल सोर्स एंड एक्सरसाइज इंटेंसिटी। ये देखो, जब एक्सरसाइज इंटेंसिटी लेस देन 30% ऑफ VO2 max, VO2 max क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज। मैंने कई बार बोल चुका हूँ। तो 30% ऑफ VO2 max से कम इंटेंसिटी में जब एक्टिविटी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फैट से आता है। फिर जब इंटेंसिटी बढ़ेगा, when the exercise intensity is more than 70% of VO2 max, then carbohydrate will be the primary source. So जब इंटेंसिटी 30% से धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमें तो अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए। एनर्जी मेटाबॉलिज्म मतलब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म साथ साथ चलते रहता है, क्योंकि हमें जो है मेन मतलब है एटीपी से मतलब है भाई, हमें एटीपी चाहिए मसल कंट्रैक्शन के लिए। अभी वो एटीपी कैसे आएगा वो डिपेंड करेगा, कहां से आएगा वो डिपेंड करेगा आपको इंटेंसिटी का ऊपर। तो इंटेंसिटी अगर 30% से कम होगा तो फैट से ज्यादा आएगा, अगर इंटेंसिटी 70% से ऊपर जाएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन होगा। So that's why the intensity of energy is increasing, a shifting of fat metabolism to carbohydrate metabolism. फैट से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म। This is the very important diagram. This is called crossover concept. ये देखो, ये जब 10% of VO2 max, ये 10% of VO2 max इस इंटेंसिटी में जब काम कर रहा है, तब देखो ये the blue one is the carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट कितना दे रहा है आपको? लगभग 30% एनर्जी जो है एटीपी कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है और 70% जो है एटीपी वो फैट से आ रहा है। अब धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, जब 30% ऑफ VO2 max में, अब 30% ऑफ VO2 max में जब एक्टिविटी हो रहा है, अब देखो लगभग ये 40-50% जो है आपका ऑलमोस्ट ये, या 40-50-53-55% जो है वो फैट से आ रहा है और 45% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। यहाँ पे जब देखो ऑलमोस्ट 35% ऑफ VO2 max इंटेंसिटी में जब काम कर रहा है, यहाँ पे 35% है, तो इट इज 50-50, ये 50% कार्बोहाइड्रेट से 50% प्रोटीन से। सो हियर दिस इज अ क्रॉसिंग, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट। अब क्या है, जब इंटेंसिटी बढ़ रहा है, अब देखो यहाँ पे जब 60% जब इंटेंसिटी में एक्टिविटी कर रहा है, 60% ऑफ VO2 max, 60% ऑफ VO2 max में जब एक्टिविटी कर रहा है, अब देखो तब आपका 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है और 30% जो है वो फैट से आ रहा है। तो इसीलिए when the intensity is increasing, there is a shifting of supply of energy from fat metabolism to carbohydrate metabolism. So this is called crossover concept. अभी जस्ट उल्टा भी है, देखो when the exercise duration is more, जब ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है मैराथन रनिंग में, जब ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तब क्या होगा? या उल्टा होगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी इट शिफ्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फैट मेटाबॉलिज्म। जब कम ड्यूरेशन के लिए एक्टिविटी कर रहा है, ड्यूरेशन कम है, तो क्या है आपको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आ रहा है। फिर जब ड्यूरेशन बढ़ते जा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट से वो शिफ्ट होगा धीरे धीरे फैट मेटाबॉलिज्म में। एंड जब फैट मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट होगा तब क्या होता है? द रेट ऑफ लाइपोलाइसिस इज इंक्रीज। लाइपोलाइसिस का मतलब अभी मैंने बोला, लाइपो मींस लिपिड, फैट, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैट
that is increase. So that means breakdown of fat means triglyceride या fat या lipid into glycerol and fatty acid. तो ग्लिसरॉल फैट जो है ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनने का जो रेट है वो दर जो है वो ज्यादा हो जाता है. So this is, you can see the duration, मतलब shift from carbohydrate metabolism to fat metabolism during prolonged exercise. जब exercise देखो duration है ये 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, ये 2 घंटा तक ये हो रहा है एक्टिविटी, जैसे मैराथन रनिंग चल रहा है या वॉकिंग चल रहा है, वॉकिंग इवेंट चल रहा है ये. तो आप देखो यहाँ पे जब शुरू में ये ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट से आ रहा था, जब ये फैट से आ रहा था, फिर अल्टीमेटली जब देखो 40 मिनट्स में आपको फैट से ज्यादा आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट से कम आ रहा है. फिर जब ये 100 मिनट में देखो आपको ओनली कार्बोहाइड्रेट से 40% जो है जो फैट से आ रहा है और फैट कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, और 60% जो एनर्जी जो आ रहा है that is fat is contributing the 60%. So all this is called the crossover concept. Now एनर्जी सबस्ट्रेट मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन. प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से देता है एनर्जी. फैट जो है ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ये एनर्जी देता है. सो दीस आर कॉल्ड द एनर्जी सबस्ट्रेट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. यहाँ पे जो है ना दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये सब आपने पढ़ा होगा, ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब पढ़ा है. ये देखो दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस. फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से फॉस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड बन के अल्टीमेटली पाइरुविक एसिड बन रहा है. ये बीच में ये बहुत सारे स्टेप्स को ओमिट किया गया है, तो शॉर्ट फॉर्म में दिया है ग्लूकोज से अल्टीमेटली पाइरुविक एसिड बन रहा है. तो दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस. तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से पाइरुविक एसिड, एसिटाइल कोए, फिर क्रेब्स साइकिल में आ रहा है. दिस इज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ओके, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. अब जब ट्राइग्लिसराइड फैट मेटाबॉलिज्म जो रहा है, फैट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से. ये ग्लिसरॉल मैंने बोला था ये फॉस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सेम नेम है, उसमें कन्वर्ट होके फिर एक ग्लाइकोलाइसिस पकड़ लेगा, फिर ये क्रेब्स साइकिल में आ जाएगा. फैटी एसिड जो है उसका ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, मैंने पहली डायग्राम में बताया था, ऑक्सीडेशन होके एसिटाइल कोए बनेगा, फिर एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है. ये है फैट मेटाबॉलिज्म. फिर ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन क्या होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा. फिर कुछ अमीनो एसिड जो है वो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, कुछ अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, सम अमीनो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या है, ये क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया था ना, कुछ अमीनो एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट से कन्वर्ट होता है. जैसे ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड, वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है. एक में CO ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक में NH2 ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है. तो अमाइन ग्रुप है इसलिए अमीनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो इसलिए ये अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है. फिर एस्पार्टिक एसिड जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए दिखा है अमीनो एसिड जो है डायरेक्टली इट एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल. कुछ अमीनो एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, कुछ अमीनो एसिड पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. जैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी के लिए, ये एलानिन एक अमीनो एसिड है, तो एलानिन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो एलानिन का एक रोल होता है, एलानिन साइकिल बोलता है वो. तो एलानिन पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होके फिर एसिटाइल कोए होके क्रेब्स साइकिल द्वारा ये एनर्जी प्रोडक्शन मतलब एटीपी प्रोडक्शन करता है. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पहले भी बताया था. ऑल द 3 सिस्टम्स, ये तीनों के तीनों सिस्टम आपका जो है एक साथ चलते रहता है. एंड 3 सिस्टम में से कोई एक सिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है. एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी. ये ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी को ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा. एंड दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक लाइट का ऑपोजिट है. ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट है, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन. लेकिन आपने कभी देखा ये तीनों लाइट या 2 लाइट इकट्ठे जल रही है, तीनों लाइट इकट्ठे जल रहा है, एट अ टाइम ओनली 1 लाइट विल बी ऑन. लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है. ये तीनों एनर्जी सिस्टम, ये तीनों लाइट जो है एक ही साथ जलते रहेगा, लेकिन वो जो ब्राइटनेस है, वो तीनों एनर्जी सिस्टम अगर एक लाइट के हिसाब से सोचोगे
तो तीनों लाइट एक साथ जल रहा है, लेकिन तीनों लाइट में कौन सा लाइट सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, मतलब कौन सा एनर्जी सिस्टम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द एक्टिविटी, मतलब ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी का ऊपर डिपेंड करेगा। So इसलिए लिखा है इन ट्रैफिक सिग्नल at a time only one light is on, but energy system all the three systems it's run together, एक साथ चलते रहता है, but one system is dominant, एक सिस्टम जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देंगे डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। ये याद रखने वाली चीज है ये। नाउ दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ये एनर्जी सिस्टम में पहले भी मैंने बताया था 1 to 4 सेकंड में मेन एनर्जी सिस्टम है एनारोबिक और एनर्जी सप्लाइड बाय द ओनली बाय एटीपी। जब ये थोड़ा बढ़ रहा है एटीपी और सीपी दोनों दे रहा है, फिर जब थोड़ा सा बढ़ रहा है ड्यूरेशन 45 सेकंड से जगह एनारोबिक है, एटीपी सीपी एंड ग्लाइकोजन तीनों दे रहा है, फिर 120 मिनट्स तक एनारोबिक लैक्टिक एसिड, मतलब एनारोबिक लैक्टिक, these are all anaerobic lactic, so anaerobic lactic this is the only muscle glycogen, मतलब lactic acid system। then the 120 to 240 seconds both aerobic and anaerobic, इसमें aerobic भी चाहिए anaerobic भी चाहिए, muscle glycogen भी देता है lactic acid system भी देता है, और 240 seconds to 600 seconds only for aerobic, that is muscle glycogen, carbohydrate and fat metabolism। ये एक डायग्राम है, ये देखिए डिफरेंट गेम का एग्जांपल दिया हुआ है, और पर्टिकुलरली बहुत सारे गेम के लिए ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको ले लो ये 800 मीटर रन, ओके 800 मीटर रनिंग के लिए आपको 40% आ रहा है एरोबिक से, 60% आ रहा है एनारोबिक से। फिर बॉक्सिंग जो है दैट इज 50 and 50, आपको दोनों चाहिए। ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा। ये स्टार्ट में सुन रहा था वो चिंतन कंडीशनिंग में कोई एक बॉक्सर ने बॉक्सिंग डिसिप्लिन का किसी ने पूछा था कि इसमें कौन सा एनर्जी ये चाहिए, इसमें आपको दोनों एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब मुक्के मार रहा है ये फटाफट फटाफट ऐसे मार रहा है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस टाइम एटीपी सीपी से आता है। फिर जब ड्यूरेशन 45 सेकंड्स का कंटिन्यूअस चल रहा है तो उस टाइम कुछ लैक्टिक एसिड सिस्टम से आता है। फिर जब आप 2 मिनट तक चल रहा है एक बाउल, 2 मिनट में बीच में आपको थोड़ा रेस्ट मिल रहा है, उस टाइम आपका एरोबिक सिस्टम चल रहा है। फिर जब 1 मिनट का जो रिकवरी है इन बिटवीन, जो इन बिटवीन जैसे ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो में आपको 2 मिनट के बाद 1 मिनट का रेस्ट है, उस 1 मिनट में आपको एरोबिक से आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई होगा, क्योंकि एरोबिक सिस्टम जितने ज्यादा डेवलप होगा वो आपको रिकवरी में ज्यादा हेल्प करेगा। ये वो मैं बाद में आऊंगा कि ऑक्सीजन डेट इपॉक क्या है, एक्सेस पोस्ट एक्सेस ऑक्सीजन कंजम्पशन, बाद में आपको डिस्कस करूंगा आपको ये। तो ये है डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूशन। वही सेम और भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से कितना परसेंटेज है, फिर ये ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव दोनों में कॉम्बिनेशन से कितना परसेंटेज है, एंड ओनली ऑक्सीडेटिव एरोबिकली कितना परसेंटेज ये सप्लाई करता है। एंड दिस इज द डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जितने सारे हमने डिस्कस किया है वो है चारों दीवार का अंदर हमने डिस्कस किया है ये। अब चारों दीवार से निकल के आपको ग्राउंड में जाना है। अभी तक जितने सीखा है दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन द फील्ड, मींस ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना है, आपको ट्रेनिंग प्लान बनाना है, आपको ट्रेनिंग इंटेंसिटी ड्यूरेशन आपको देना है, कितना ट्रेनिंग दोगे। और जब कोई एक ट्रेनिंग दोगे ना, हर एक ट्रेनिंग का एक मकसद रहता है, एक एम रहता है। फॉर एवरी ट्रेनिंग दैट इज द एम। जब एक कोई एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रहा है, इसलिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग देता है, एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। आसानी से बोल दिया, अरे एंड्योरेंस ट्रेनिंग तो हम देता है एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग हम देता है इसलिए स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। फिर अपने स्पीड ट्रेनिंग देता है, स्प्रिंट ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग देता है, क्यों? स्पीड क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। ये तो आसानी से बोल दिया, लेकिन कैसे होता है ये, इसके लिए आपको एनर्जी सिस्टम को आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये देखिए हाउ टू डेवलप दिस 3 सिस्टम्स। ये 3 सिस्टम को डेवलप कैसे किया जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट टाइप ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट टाइप ऑफ ड्यूरेशन, हाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस, so that all depends upon this energy system। means आप जब endurance develop कर रहा है, ultimately you are developing the aerobic system। अब जब speed training दे रहा है, आप speed develop कर रहा है, sprint quality develop कर रहा है, that is you are developing the anaerobic lactic system। means this is the anaerobic lactic। इसका मतलब आप इधर आप लिख सकते हो ATP-CP system। so that means you are developing the ATP-CP system to improve your speed quality। you give the speed training to improve your speed quality, means by giving the speed training you can improve the
anaerobic lactic system or ATP-CP system or phosphagen system or you can say phosphocreatine system. इसका बहुत सारे नाम है, देखना ये 6-7 नाम है इस सिस्टम का. This is anaerobic lactic system. That means anaerobic glycolysis or lactic acid system. When you give the speed endurance training, so that means you are developing the anaerobic lactic system. Means anaerobic glycolysis you are developing, means lactic acid systems you are developing to giving by giving the speed endurance training. And this is a classical example of the Fox and Matthews. The Fox that Edward L. Fox एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा किताब लिखा है उन्होंने. तो उन्होंने ये क्लासिकल एग्जांपल है, ये इट इज बहुत फ्लेक्सिबल है. ये आप देखिए, अब देखने से आपको पता चलेगा ये जब एटीपी-सीपी सिस्टम डेवलप करोगे उसके लिए देखो ड्यूरेशन 0 to 10 सेकंड्स तक है. ये 5 सेकंड भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है, इसलिए कोई रिजिड नहीं है, एक ड्यूरेशन दिया हुआ है. फिर डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर से 80 मीटर तक डिस्टेंस है. जब ये ड्यूरेशन बढ़ेगा ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन नॉट लेस देन 20 मीटर, नॉट मोर देन 80 मीटर. देन इंटेंसिटी, मैक्सिमल इंटेंसिटी, रेपिटेशंस कितना है, 3 to 4 रेपिटेशंस. देन रिकवरी इन बिटवीन 2 रेपिटेशंस, इन बिटवीन 2 रेपिटेशन के बीच में रिकवरी कितना है, 1.5 मिनट to 3 मिनट्स. देन सेट्स, कितने सेट होगा, 1 to 4 सेट्स, और एक सेट का इन बिटवीन 2 सेट्स द रिकवरी इज 8 to 10 मिनट्स. ये जब देखो ये ड्यूरेशन जब बढ़ती जाएगा तो ये सारे के सारे चेंज होते जाएगा, तो डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगा. ठीक है, इंटेंसिटी भी कम होते जा रहा है देखो ये. ठीक है, और रिकवरी भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको. ये देखो एरोबिक में ये 1 मिनट to 60 मिनट जो है, 300 मीटर to 15,000 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर फॉर कंटिन्यूअस रन. देन इंटेंसिटी कम हो रहा है. ये देखो रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है ये. ठीक है, तो ये देखो in between repetitions 1 to 3 minutes. Okay, then in between sets 5 to 8 minutes. So ये सब डिपेंड करता है ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी का ऊपर. इसी का ऊपर आपको पूरा जो आपका जो ट्रेनिंग जो बनाना है, ये इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी सिस्टम. इसलिए एनर्जी सिस्टम को पता होना बहुत ही जरूरी है. देखो मैंने बोला था ना अजीब टॉपिक है ये, जितना भी पढ़ते जाओ खत्म नहीं होता है, ये भुखाई रह जाओगे. ये अभी एक टॉपिक तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले क्लास में वो भी कंटिन्यू करेंगे और नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, दैट इज लैक्टिक एसिड एंड इट्स रेलेवेंस इन स्पोर्ट्स. तो ये एनर्जी सिस्टम जो है, दैट 3 सिस्टम्स, एटीपी-सीपी सिस्टम, anaerobic glycolysis, that means ATP-CP system, anaerobic lactic, anaerobic glycolysis या anaerobic lactic system या lactic acid system, and aerobic system. ये इसके बारे में हमने चर्चा किया है. अब देखो, अब जल्दी मैंने ये जल्द से जल्द मैंने ये अपलोड कर दूंगा, ये जो पीपीटी जहां तक हुआ है, और जो भी आपका क्वेरी है वो अपना टीचर से डिस्कशन में आप डिस्कस कर सकते हो. डिस्कशन क्लास में आज है ये 3 to 4